پیارے بہنوں اور بھائیوں بچوں، خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کراس وے ٹی وی اور اس کے وسیلے لوگ برکت پا رہے ہیں۔ اور آج پام سنڈے ہے اور پام سنڈے کے تعلق سے ہم کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے خداوند کے زندہ کلام میں سے۔ اور کلام مقدس میں سے ہم پڑھیں گے مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 21واں باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ، اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے، وہ فی الفور انہیں بھیج دے گا۔ یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ پر شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا۔ اور بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستہ میں بچھائے اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں، اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی، ابن داؤد کو ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشانا۔ خداوند اپنے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اپنی برکت بخشے۔ بیتنیہ، بیت فگے، یہاں یسوع مسیح آتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بیتنیہ کا ذکر کلام مقدس میں یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب جو ہے اس میں بھی آیا، پہلے باب کی 28ویں آیت میں۔ یہ بیتنیہ جو ہے یہ دوسرے بیتنیہ سے مختلف ہے جہاں لازر، مارتھا اور مریم رہتے تھے، اور اس بیتنیہ کو جہاں یوحنا بپتسمہ دیتا تھا بیت برا بھی کہتے تھے، جس کا ذکر قضات کی کتاب میں ہمیں ملتا ہے۔ قضات کی کتاب 7واں باب اور اس کی 24ویں آیت میں اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے، جہاں لکھا ہے کہ بیت برا۔ تو اس طرح سے یہ وہ جگہ ہے جہاں یوحنا بپتسمہ دیا کرتا تھا، یہی وہ جگہ ہے جہاں یسوع مسیح کو اپنی طرف آتے دیکھ یوحنا نے کہا کہ دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اور یہ بہت بڑی خوشخبری تھی بنی نوع انسان کے لیے، دنیا کے تمام انسانوں کے لیے، کہ یہ خدا کا برا ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اور دوسرا بیتنیہ جو ہے وہاں لازر، مارتھا اور مریم رہتے تھے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں شمعون کوڑی کا گھر تھا، جہاں یسوع مسیح اور اس کے شاگردوں کی ضیافت کی گئی، اور شمعون کے گھر میں ہی یسوع مسیح کے سر پر مریم نے عطر ڈالا اور آنسوؤں سے اس کے پاؤں بھگوئے اور بالوں سے اس کے پاؤں پونچھے۔ شمعون پریشان ہے کہ اگر یہ نبی ہوتا تو اسے پتہ چلتا کہ یہ عورت کیسی ہے۔ تو یسوع نے کیا کہا؟ تم کیا سمجھتے ہو زیادہ پیار کون کرے گا، وہ جس کے زیادہ گناہ معاف ہوئے یا وہ جس کے کم گناہ معاف ہوئے؟ تو شمعون کہنے لگا وہ جس کے زیادہ گناہ معاف ہوئے۔ تو یسوع کا سمجھانے کا مطلب یہ تھا کہ اس کے گناہ معاف ہو چکے، اور اس کا ذکر دنیا کے آخر تک ہوتا رہے گا جب تک یہ دنیا قائم ہے، اور آج ہم بھی اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور یوحنا کو بپتسمہ دیتے ہوئے دیکھ کر لوگ اس کے پاس آتے ہیں، اور آج کے دن یسوع مسیح کے پاس لوگ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یسوع مسیح نے لازر کو جو 4 دن کا مردہ تھا زندہ کیا، اور پورے یروشلم میں بڑا رش تھا، لوگ پوری دنیا سے اکٹھے ہوئے تھے عید فصح منانے کے لیے۔ اور عید فصح منانے کے لیے لوگ جب وہاں جمع تھے، اور جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح نے 4 دن کے لازر کو مردوں میں سے زندہ کیا، اسے قبر سے باہر نکال لیا ہے، وہ زندہ ہو گیا ہے،
तो लाजर को देखने के लिए और यीशु मसीह का दीदार करने के लिए लोग उस तरफ जाते हैं। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो वहाँ से निकला, और जैसे ही वो बैतफगे के करीब पहुँचा तो यीशु मसीह ने 2 शागिर्दों से कहा कि जाओ सामने के गांव में, और वहाँ गधी का बच्चा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर मेरे पास ले आओ। अगर कोई तुमसे कहे कि ये क्या करते हो, क्यों खोलते हो, कहना खुदावंद को इसकी ज़रूरत है। तो हम देखते हैं कि खुदावंद दिल को परखता है, वो दिल के राजों से वाकिफ़ है। खुदावंद जानता था कि अगर मैं इनको भेजूंगा तो वो उसको साथ आने देंगे। खुदावंद ने हर चीज़ के बारे में वो इल्म रखता है, हर चीज़ के बारे में वो जानता है। और जब गधी का बच्चा यीशु मसीह के पास लाया गया तो लिखा है कलाम मुक़द्दस में कि शागिर्दों ने अपने कपड़े उस पर डाले और यीशु मसीह को उस पर सवार किया। तो जैसे यीशु मसीह उस पर सवार हुआ, तमाम भीड़ ने, बड़ा रश था, तमाम भीड़ एक जुलूस की सूरत में यीशु मसीह के साथ यरूशलेम की तरफ आगे बढ़ती है। और जैसे ही लोगों ने देखा कि वो गधे पर सवार हो चुका है तो लोगों ने दरख्तों की टहनियाँ, डालियाँ काट कर राह में फैलाना शुरू कर दी, और इस तरह से अपने कपड़े जो है उनको राह में फैलाना शुरू कर दिया। और वो शहर के करीब पहुँचे तो लोगों ने और ज़्यादा खुशी से बुलंद आवाज़ से नारे लगाना शुरू कर दिए। और वो नारे क्या थे? कलाम मुक़द्दस में लिखा है वो भीड़ जो है वो ये नारे लगा रही थी कि इब्ने दाऊद को होशाना, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलम बाला पर होशाना। तो जब हम लूका की इंजील को पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि आलम बाला पर सुलह, और फरिश्ते जब गडरियों के पास आते हैं तो वो कहते हैं कि ज़मीन पर सुलह। तो दोनों तरफ सुलह की बात की जाती है। आसमान पर फरिश्ते भी सुलह की बात करते हैं, ज़मीन पर इंसान भी सुलह की बात करते हैं। और ये सब कुछ पाक रूह की कुदरत से हो रहा था। रूहुल कुदरत की रहनुमाई में सारा काम जो है वो सर अंजाम दिया जा रहा था। यीशु मसीह जानता था कि मैं यरूशलेम के तख्त पर बैठने के लिए नहीं बल्कि बनी नूं इंसान को निजात देने के लिए यरूशलेम की तरफ बढ़ रहा हूँ। और यीशु मसीह ने शागिर्दों के सामने इन्हीं दिनों में 2-3 दफ़ा अपनी मौत का जिक्र किया, अपनी मौत के बारे में शागिर्दों को बताया। और यीशु मसीह ने कौम से भी कहा था कि तुम इस मक़दस को ढा दो तो मैं तीसरे दिन उसे उठा खड़ा करूँगा। तो यीशु मसीह वो सब कुछ अपने बारे में बता रहा था। और शागिर्द पूछते हुए डरते थे कि ये क्या बातें हैं जो यीशु मसीह करता है। वो सब बातें पोशीदा रखी गई, इसलिए शागिर्द जो हैं वो पूछते नहीं। यीशु मसीह जिक्र करता है लेकिन शागिर्द पूछते नहीं हैं। तो यीशु मसीह बनी इंसान के दरमियान और खुदा के दरमियान सुलह कराने के लिए यरूशलेम की तरफ आगे बढ़ रहा है। लोग नारे लगा रहे हैं, होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। यानी होशाना का मतलब है कि ए खुदावंद हमें बचा ले, हमें रिहाई दे, हमें निजात दे, हमें छुड़ा गैर कौमों की ग़ुलामी से, हमें रूमियों की ग़ुलामी से आज़ाद कर। हम मुश्किल में हैं, हम दुख में हैं, हम अज़ियत और तकलीफ़ में हैं, हमें रिहाई और आज़ादी बख्श। लोग इस तौर से यीशु मसीह को एक बड़े जुलूस की सूरत में यरूशलेम की तरफ लेकर जा रहे थे। यीशु जानता था कि मैं बनी इंसान की निजात की खातर यरूशलेम की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। लोग समझते थे कि आज ये हमारा बादशाह बन जाएगा, हमारे बीमार भी ठीक होंगे, हमें खाना भी मिलेगा, आला तालीम भी मिलेगी, हमारे मुर्दे भी ज़िंदा होंगे। क्योंकि लाजर जो 4 दिन का मुर्दा था वो भी उनके साथ था। वो भी यीशु मसीह के जलाल के लिए नारे लगा रहा था कि मुझे यीशु मसीह ने ज़िंदा किया है। खुशाना के नारे सब लगा रहे थे, सब आगे बढ़ रहे थे। और इन सारी बातों को देखते हुए यीशु मसीह जब आगे बढ़ता है तो कौम के बुजुर्ग जो हैं वो परेशान हैं। कहते हैं कि तुमसे कुछ बन नहीं पड़ता, जहान उसका पैरो हो चला, दुनिया उसके पीछे है, दुनिया उसकी पैरवी में आगे बढ़ती जा रही है, और दुनिया रोज़ बरोज़ उसकी ताज़ीम और उसकी परस्तिश कर रही है, उसे उत्तम दर्जा दे रही है। क्योंकि ये लोग जो थे ये सिर्फ लोगों को तालीम देते थे, लोगों पर भारी जुआ रखते थे, लोगों को मुश्किलात में से पड़े रहने देते थे,
लेकिन यीशु मसीह मुश्किलात में से निकालता है। वो जन्म के अंधों को आंखें देता है, वो जन्म के लंगड़ों को चलता फिरता कर देता है, वो मुर्दों को जिंदा करने की कुव्वत, कुदरत और इख्तियार रखता है। इसी जोश और जज्बे के साथ ये तमाम भीड़ नारे लगाती हुई जाती है कि आलम बाला पर होशाना, आलम बाला पर होशाना, आलम बाला पर सुलह की बात करते हैं। तो यीशु मसीह सुलह कराने के लिए गया ताकि हमें इब्लीस के पंजे से छुड़ाए, हमें मौत से रिहाई दे, हमें गुनाह से रिहाई दे। और इन सारे कामों के लिए खुदा यीशु जानता था कि मुझे अपनी जान को देना है, मुझे खून बहाना है, मुझे दुखों में से गुजरना है, मुझे सारे दुख और अज़ियतें और तकलीफ़ें जो हैं अपने जिस्म में बर्दाश्त करनी हैं। क्योंकि यसाया 53 बाब में लिखा है कि तेरे मार खाने से हमने शफा पाई और तेरे खून बहाने से हमको निजात मिली। तो वो हमारा निजात दहिंदा है। यसाया में बड़ी वजाहत के साथ लिखा है कि मैं ही तेरा खुदावन, तेरा फिदिया देने वाला हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, कोई रिहाई देने वाला नहीं है, कोई निजात देने वाला नहीं है। आज बनी नूं इंसान को निजात देने के लिए, नई ज़िंदगी देने के लिए यरूशलेम की तरफ वो आगे बढ़ता है। और इसके बारे में ज़करिया की किताब 9वां बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है, ए बिन्नत सयून तू निहायत शादमान हो, ए दुख तेरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। उसकी हलीमी और फरोतनी को देखें। बादशाह घोड़ों पर जाते हैं, हाथियों पर जाते हैं, लेकिन मेरा और आपका यीशु गधे पर सवार होकर यरूशलेम की तरफ जाता है। वो खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह है, लेकिन उसने अपने आप को पस्त कर दिया, खाली कर दिया। उसने अपने आप को खुदा की कुदरत रखते हुए भी उसने अपने आप को हलीम और फरोतर बनाया, पस्त किया, ताकि बनी नूं इंसान को निजात दे, बनी नूं इंसान को रिहाई और आज़ादी बख्शे, बनी नूं इंसान के लिए ज़िंदगी के दरवाज़ों को खोले, बनी नूं इंसान के लिए बरकत के दरवाज़ों को खोले। और फिर हम देखते हैं कि जितने लोग खुदा के बेटे यीशु मसीह को कबूल करते हैं, उसके खून को अपनी ज़िंदगी में लेते हैं, उसकी सलीब के नीचे आते हैं, खुदावंद उन्हें अपने लोगों में शुमार करता है, खुदावंद उन्हें बरगुज़ीदा लोगों में शुमार करता है, खुदावंद उन्हें चुने हुए लोगों में शुमार करता है और उन्हें अबदी ज़िंदगी के लिए तैयार करता है। और वो बड़ी भीड़, वो बड़ा रश जो है आने वाले वक्त में भी होगा, जिसका जिक्र मुकाशफा की किताब उसका 7वां बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है कि इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ, हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़ुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफ़ेद जामे पहने और खजूर की डालियाँ अपने हाथ में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है। ये वो बरगुज़ीदा लोग हैं, ये वो चुने हुए लोग हैं दुनिया की कौमों, कबीलों, उम्मतों और अहले ज़ुबान में से जिन्होंने खुदा के बेटे यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया है। और जिन्होंने उसे कबूल कर दिया है उन्हें अपने बाप के जलाल में शरीक करने का दावा करता है। दुनिया में कोई नबी, पैगंबर, रसूल नहीं आया। बहुत से अंबिया का जिक्र हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं, लेकिन कोई ये दावा नहीं कर सका कि मैं तुम्हें बाप के जलाल में शरीक करूंगा, मैं तुम्हें खुदावंद के जलाल में शरीक करूंगा। एक ही हस्ती आई, वो मेरा और आपका यीशु है, जिसने मेरे और आपके लिए अपनी जान देकर, अपना खून बहा के हमें खरीदा, हमें चुना, हमें अलहदा कर लिया और हमें उस भीड़ में, जो मुकद्दसीन की भीड़ है, जो बरगुज़ीदों की भीड़ है, उसमें शामिल किया है। हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें कि जब यीशु मसीह मेरे और आपके लिए हलीम और फरोतर बन गया, गधे पर सवार हो गया, तो हमें अपनी ज़िंदगी से गुरूर को, घमंड को, तकब्बर को, शेखी को दूर करना है और यीशु की पैरवी में आगे बढ़ना है। अपने दुश्मनों के लिए दुआ करनी है, सताने वालों के लिए दुआ करनी है, दुख देने वालों के लिए दुआ करनी है कि खुदावंद उनकी सोच को बदले, खुदावंद उनकी रवैयों को बदले, ताकि वो खुदा के बेटे यीशु को पहचाने और उसकी वफादारी में आगे बढ़े। खुदावंद चाहता है कि दुनियादारी जो है हम उससे अलग होकर यीशु की वफादारी में आगे बढ़ें। यीशु ने हमें सिखाया, यीशु ने हमारी रहनुमाई की और उसने अपना पाक रूह हमें दिया है ताकि हम उसके पाक रूह की रहनुमाई में इस दुनिया में आगे बढ़ें, उसकी वफादारी में आगे बढ़ें।
جب ہم اس کی وفاداری میں آگے بڑھیں گے تو پھر ہم اس بہت بڑی بھیڑ میں جو مقدسین کی بھیڑ ہے اس میں شامل کیے جائیں گے، اور پھر ہم ہمیشہ ہمیشہ اس کے جلال، اس کے بادشاہی میں داخل کیے جائیں گے۔ خدا ہمیں بڑی برکت بخشے، آمین۔